हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी जीत का झंडा गाड़ा है। सब देशवासियों को राहुल गांधी जी की तरफ से, कांग्रेस अध्यक्षा जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। देश का किसान जो पीड़ा में है उसे लेकर आज राहुल गांधी जी आपसे बात करेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक किसान की पीड़ा को लेकर एक पुस्तिका जो सर्कुलेट की जाएगी, मैं सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी से और संगठन महासचिव प्रभारी और हमारे कोषाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि पहले वो बुक रिलीज कर दें और उसके बाद राहुल जी आपसे बात करेंगे। आदरणीय राहुल जी, 2 मिनट रुक जाइए। Sir, if you can just stand up for a minute. देखें सी कितने फेयर हैं हम लोग, इधर भी दिखाते हैं, उधर भी दिखाते हैं, उधर भी दिखाते हैं। हाँ, बीजेपी होती तो बस ऐसे करती। आदरणीय साथियों, बगैर किसी विलंब के मैं अनुरोध करूंगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी आपसे बात करेंगे। Good morning. There is a tragedy unfolding on this country's ability to give you a job, this country's ability to stand tall among other nations. So, what we are seeing, and we've seen it in industry after industry after industry. We've seen it when it comes to the airports. We've seen it when it comes to infrastructure. We've seen it when it comes to power. We've seen it when it comes to telecom. We've seen it when it comes to retail. Across the board, what we are watching is the development of massive monopolies in this country. What do I mean? I mean that 3, 4, 5 people are now owning this country. This country is now owned by a limited, small group of people who I term as crony capitalists, who have a close relationship with the Prime Minister and who provide the Prime Minister with media support. And I don't mean you, because you are not the decision makers. I mean the forces that control you. Which was the space that was protected from monopolies until now? First of all, the biggest business in this country, and this is something that youngsters have to understand, the biggest business in this country is agriculture. 60% of our people are in agriculture, and in terms of the value, agriculture is by far the biggest hit. Agriculture is not just what the farm grows. Agriculture is the machinery that moves that produce. Agriculture is the structure of how that produce is sold. And now what we are seeing is the last bastion that was protected from monopoly is now being overrun. How is it being overrun? 3 new laws have been passed. They are designed to destroy Indian agriculture. How are they designed to do it? By destroying the Mandi, by destroying the Essential Commodities Act, and by making sure that no Indian farmer can go to court to protect himself. And to me it is a tragedy that this entire country is just watching this ridiculous show. It is a tragedy because
it shows me that the country itself is not able to understand the depth of what is happening. So what is going to be the result of this? The result of this is going to be 3 or 4 people are going to own India. 3 or 4 people are going to own the entire agricultural system. Farmers will not get the value they deserve. The mandi system will be destroyed. 3 or 4 businessmen will be able to store millions and millions and millions and millions of tons of wheat, rice, other essential commodities. And then, my friends in the middle class, you will be paying prices that you have never imagined. Please understand that the rice you buy, the wheat you buy, comes to you at the rate it comes because of the APMC, because of the agricultural system, because of the structure. So this is not an assault on the farmers. This is an assault on the middle class, and this is an assault on every single youngster in this country who is not going to be able to get a job. So this is what I want to tell the youngsters. Realize that your independence is being taken away. Realize that this happened before, and we fought this. And everything we have today is because of the fight that we fought. And the same exact thing is happening to India today. This is the simplest way I can put it. So, why are the farmers of Punjab and the farmers of Haryana standing there? Who are they? They are the patriots of this country who are protecting the livelihood of 60% of this country. I 100% support them. And I go further. Every single Indian person should support them because they are fighting for us. They are not fighting for themselves. They are fighting to prevent this country from falling into the hands of 2 or 3 people. That is the heart of what I wanted to say. मैं हिंदी में बोल देता हूं. देखिए, अगर आप पिछले 6-7 साल को देखें तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है. पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, पोर्ट्स देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है. मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं. आज तक एग्रीकल्चर में, खेती में मोनोपोली नहीं थी. आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था. कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था. उसमें मंडियां शामिल थीं, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था. ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं. 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं. इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं. और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं. और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है. ये हिंदुस्तान की रियलिटी है. अब आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जरूर पूछिए. वील टेक क्वेश्चंस. देखिए, एक बात है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मैं किसान भाइयों के लिए कर रहा हूं. तो ब्रॉडली मैं आपके जवाब दूंगा, मगर डिस्ट्रैक्ट करने की आप कोशिश मत कीजिए. वील गो वन बाय वन. लेट्स गो विद संजीव फ्रॉम पीटीआई. आई विल कम टू यू मैम. आई हैव नोटेड इट.
there is no deadlock. You have to understand what is going on. There is no deadlock. The government believes that they can tire out the farmers. The government, in its arrogance, believes that किसानों को थकाया जा सकता है, किसानों का बेवकूफ बनाया जा सकता है. किसानों को ना थकाया जा सकता है, ना उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है. किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है. प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो दैट इज द रियलिटी. सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा. We are exerting more pressure. We are already exerting pressure. This press conference is a means of exerting pressure. But more than exerting pressure, I think the thing to understand is that this is not about farmers. This is about the creation of massive monopolies in this country that are going to take away wealth from the people of India. This is the crux of it. Please tell me one industry in India today, just name it for me, which is not monopolized by the same 5-6 people. That is the real crux of the issue. The farmers are, this is the first step, but you will see after the farmers, India will not be able to produce jobs. Why is it that the Indian economy has gone from the best performance to the worst performance? Siddharth from ANI, I've noted that. अभी मुझे, हाँ, ये अटेम्प्टेड डिस्ट्रैक्शन है, ये अभी फुल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अटेम्प्टेड डिस्ट्रैक्शन है, बट ठीक है. हाँ, देखिए, जो उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं. सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है. सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए, बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो उसको सरकार घसीटती जा रही है. तो रियलिटी किसान जानते हैं, और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है. किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा. लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था. तो जब किसान की जमीन का मामला था, वहां पे कांग्रेस खड़ी थी. जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी, वहां कांग्रेस खड़ी थी. नड्डा जी कहां थे, मुझे तो नहीं दिखे. थैंक यू. कैन वी गो टू एबीपी आशीष. और ये मैं आपको एक और बात बता देता हूं. देखिए, मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते. बात समझिए. हां, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते. और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं. ठीक है, और मैं करता जाऊंगा. मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं. ठीक है, और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए ये देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है. आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना. मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, मैं तो गुलाम नहीं हूं ना. आशीष फ्रॉम एबीपी. सर, जिसका रेफरेंस सिद्धार्थ ने दिया, जेपी नड्डा साहब ने कुछ स्पेसिफिक चीजें पॉइंट आउट की हैं. उन्होंने कहा है कि एपीएमसी एक्ट को रिपील करने की बात आपके मैनिफेस्टो में क्यों की. दूसरा, उन्होंने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आप लोगों ने स्टॉल क्यों किया, एमएसपी के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ाए.
करना चाहता हूँ सर, क्योंकि आज सुबह सुबह आपने भी ट्वीट किया था, जेपी नड्डा साहब ने आपसे चाइना वाले इशू पर भी सवाल पूछा है कि आप क्यों ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, जबकि ये जमीनें पंडित नेहरू के जमाने में चाइना ने कब्जा। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं? ये कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हां हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब एक दो लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है। थैंक यू सर। कैन वी गो टू अरुण फ्रॉम न्यूज 18? आई विल कम टू यू मैम। राहुल जी, 8-9 दौर की 10 दौर की बातचीत हो चुकी सरकार के बीच और किसानों के बीच। सरकार ये उम्मीद कर रही है कि कभी तो बीच का कोई रास्ता निकल जाए ताकि हमारी भी फेस सेविंग हो जाए और किसानों की बात भी रह जाए। अब संसद का सत्र आने वाला है, क्या कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर तीनों कानून को खत्म करने से कुछ भी कम पर मान सकती है या खत्म करने के बाद नहीं, क्यों माने? देखिए, सॉरी, खत्म करिए। दूसरा है थोड़ा वो जो डिस्ट्रैक्शन वाला, ठीक है, उसको आप बाद में बोल देना। पहले इसको मैनेज करता हूं। देखिए, ये एक प्रोसेस है। ये जो 3 कानून है, ये प्रोसेस के एक भाग है। प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस भट्टा पर सोल, प्रोसेस लैंड एक्विजिशन, प्रोसेस की नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं बोनस नहीं दूंगा, एमएसपी में सही पैसा नहीं देना। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ ही नहीं पाएगा। तो ये जो 3 कानून हैं, ये एक प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं। और ये जो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम है, ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं। ये रियलिटी है। और हमारा काम हिंदुस्तान का जो किसान है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में ये 3 कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की पोजीशन है, किसानों की पोजीशन है। मगर आप यह मत सोचिए कि अगर ये 3 कानून रद्द हो गए नरेंद्र मोदी वहां रुकेंगे। वो नहीं रुकने वाले। वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को 3-4 लोगों के हाथ में करना ही चाहते हैं और हमें उनको रोकना है। नहीं, वो डिस्ट्रैक्शन वाला नो, अब मैं आपके पास वापस आऊंगा। पूछ लो, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। आई विल कम टू यू। संजय मिश्रा जी फ्रॉम जागरण। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं, बट सुप्रीम कोर्ट की रियलिटी पूरे हिंदुस्तान को दिख रही है। थैंक यू सर। I'll come to you. I'll come to you. Anand Patel from India Today. You spoke about the narrative and the agenda which the government is trying to set whenever it is in a suit. The farmers were also labeled as Naxals and terrorists and Khalistanis, and certain media also stated that now they stand exposed to the WhatsApp chat leaks. How do you see this kind of attempt, time and again by the government whenever such incidents occur? Look, the law will take its own course, but I have an observation. This was top secret information. This was not provided to anybody else. There were 4 or 5 people who knew this information. Prime Minister of India, possibly the Defense Minister of India, the Home Minister of India, the Air Force Chief. These would be the 5 people who would know this. This is a criminal act. Giving official secret information to a journalist is a criminal act, both on the part of the person who accepted it and on the part of the person who gave it. These people call themselves patriots, right? There's nothing patriotic about
putting our Air Force at risk. There's nothing patriotic about taking political advantage so that our aircraft gets shot down, so that the Pakistanis know that our Air Force is coming, right? If Mr. Arnab Goswami knows, if it is on